Welcome to Urology Unplugged. I'm your host Isha, and today we are diving into a topic that affects millions of people, that is kidney stones. Joining us is Dr. Praveen Kumar Pandey, seasoned urologist with over 15 years of experience in the field. Welcome, Dr. Pandey. Thank you, Isha. Thank you for having me on this podcast show. Doctor, let's start with basics. What exactly are the kidney stones? Frankly speaking, kidney stones are nothing but they are small crystals that are formed in the kidneys, and they are forming when the kidney is not able to dilute these small crystals. They can grow bigger in size, starting from the size of a sand particle and becoming as big as a golf ball in your kidneys. Doctor, what causes kidney stone formation? Frankly speaking, kidney stones are usually caused due to dehydration, because if people take less and less water and they are in dry and environmental conditions, hot and humid conditions, then they usually tend to develop kidney stones. Our country has got a very long belt of kidney stones starting from Himalayas up to the Assam region. So these are hilly areas. Also there are certain areas where the kidney stones are more common because they are dry areas. Okay. And apart from this, the dietary habit of people also is important, because if they are taking more and more of proteinaceous diet, and they are taking more and more of the salt, they are taking more and more of the red meat, then they are more likely to develop kidney stones. In certain situations, in certain conditions, certain medical conditions can also cause kidney stones, like fat and obese people, certain people who are having metabolic disorders. They are not very common, so I would not take their name, but there are certain conditions, medical conditions also, where kidney stones can form in people repeatedly. Okay, so bad food habits are also responsible for formation of kidney stones. In fact, primarily they are important, because if you don't take much of the fluids and if you keep on consuming more and more of the protein, salt intake, people don't realize that whatever diet they are taking, even preserved foods, it is having a lot of concentration of salt because of the sake of preservation, increasing the shelf life. So these are certain situations where people should know what to consume, and your body is your temple, so if it is up to you to take care of it. डॉक्टर, क्या किडनी स्टोन्स एक किडनी में ही फॉर्म होते हैं या दोनों किडनी में फॉर्म होते हैं? किडनी स्टोन्स दोनों किडनीज में बन सकते हैं, एक किडनी में भी बन सकते हैं। और जिन व्यक्तियों को बार बार किडनी स्टोन्स बनते हैं, उनमें कई बार ये देखा गया कि दोनों किडनी में स्टोन्स बनते रहते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो अपने आप ही निकल जाते हैं, और जब उनका साइज़ बड़ा होता है तो वो ज़्यादा परेशान करते हैं लोगों को। तो ये कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि एक ही किडनी में बनेंगे या जिसमें बने उसी में बार बार बनेंगे। ये बॉडी का टेंडेंसी है, तो किसी भी किडनी में बन सकते हैं। क्या कर सकते हैं डॉक्टर प्रिवेंट करने के लिए कि स्टोन्स के फॉर्मेशन ना हो, रिकरेंस ना हो बार बार, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिकरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे किसी की बॉडी की टेंडेंसी है स्टोन बनाने की, जैसे हमने अभी बात की, कुछ मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ हेरिडिटरी रीजंस हैं कि भाई स्टोन तो बनेगा ही बनेगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले अपना फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है। तरल पदार्थ जो हम लेते हैं, लिक्विड्स लेते हैं, लिक्विड्स में आप ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई जूस पर्टिकुलर पिएंगे तभी अच्छा रहेगा। हाँ, साइट्रस फ्रूट्स हैं, साइट्रस जूसेस हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं किडनी स्टोन्स को। लेकिन इसके अलावा अगर आप नॉर्मल पानी भी पिएंगे, बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम क्या आरओ का पानी पिए, हम बॉयल्ड वाटर पिए, हम मिनरल वाटर पिए कि हमें स्टोन ना हो, तो ऐसा नहीं है। आप कोई सा भी लिक्विड लोगे तो आपकी यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, और कम से कम 2 लीटर यूरिन बने अगर आपका 24 घंटे में, तो आपके स्टोन्स फॉर्मेशन की चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो भाई फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि कुछ डाइटरी हैबिट्स हैं जिसमें कि आपको अपना ओवर ईटिंग नहीं करनी है, सॉल्ट के फॉर्म में एक्सेस सॉल्ट नहीं लेना है डाइट में, आपको एक्सेस प्रोटीन नहीं लेना है, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना। नॉन वेजिटेरियन डाइट यू कैन टेक, लेकिन रेड मीट अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, इट कैन फॉर्म यूरिक एसिड स्टोन्स। सो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगर घर में किसी को स्टोन फॉर्मेशन हुआ है और आपको भी एक बार हो चुका है, तो थोड़ा सा और कॉशियस हो जाएं इस चीज़ को लेके। कई बार लोग हमसे आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम अगर दूध पिएंगे तो
दूध में तो कैल्शियम होता है, उससे स्टोन बन जाएगा, तो ये सही नहीं है। आप दूध पी सकते हो, दूध भी एक लिक्विड है और उससे स्टोन नहीं बनेगा। कैल्शियम लेने से स्टोन नहीं बनता, बल्कि ऑक्सलेट रिच डाइट लेने से स्टोन बनता है। ऑक्सलेट की चीज़ों में होता है, जैसे कि टमाटर है, पालक है, बैगन है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई इसको कम खाओ, तो लोग ये समझ लेते हैं कि नहीं, इसको तो बंद ही कर देना है। ऐसा नहीं है, आपको बंद नहीं करना है, आपके लिए ऑक्सलेट ज़रूरी है। अगर आप टोटल बंद कर देंगे तो आपको जान के हैरानी होगी कि स्टोन फॉर्मेशन का चांस बढ़ जाता है। ओके, ठीक है, तो किसी भी चीज़ को कंप्लीटली शट डाउन नहीं करना, बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट है फ्लूइड इनटेक। तो एक्सेस प्रोटीन इंटेक की वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। एक्सेस प्रोटीन इनटेक में बॉडी के अंदर जो डायनामिक्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें यूरिन में ज़्यादा एक्सक्रीट होने लगती हैं, जैसे ऑक्सलेट ज़्यादा एक्सक्रीट होने लगता है, कैल्शियम लेवल्स यूरिन में के अंदर बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में स्टोन फॉर्मेशन बढ़ने लगता है। तो एक्सेस प्रोटीन को भी अवॉइड करना है। ओके डॉक्टर, आपने अभी जिक्र किया कि फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, तो मैं जानना चाहूँगी कि कैसे हम ये समझ सकते हैं कि हम किस मात्रा में फ्लूइड लें जो कि हमारे किडनी स्टोन के फॉर्मेशन को रोक सकता है, उसकी वजह से नहीं होगा, ये कैसे हम क्वांटिटी डिसाइड करेंगे? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से, क्योंकि सारे लोग हमसे यही पूछते हैं। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका जो यूरिन फॉर्मेशन है, जो आप यूरिन आप पास कर रहे हो, जो आप यूरिन कर रहे हो 24 घंटे के अंदर, दैट शुड बी अराउंड 2 लीटर्स, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति है जो हॉट एनवायरनमेंट कंडीशन में काम कर रहा है, सोल्जर्स हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं, तो उनका बॉडी से स्वेटिंग भी ज़्यादा होगी और उनका यूरिन फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो उनका फ्लूइड इनटेक एक वाइट कॉलर्ड पर्सन या ऑफिस गोइंग पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा लिक्विड कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड उनका किसी और फॉर्म में चला जाता है। तो 2 लीटर का यूरिन बनाने के लिए उनको हो सकता है 5 लीटर लिक्विड लेना पड़े। और एक वाइट कॉलर पर्सन है, वो पूरे टाइम एसी में है, वो कहीं अपने ऑफिस जॉब पे है, तो वो अगर वो 2.5 से 3 लीटर भी लिक्विड लेगा तो हो सकता है उसके 2 लीटर यूरिन बन जाए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं कि कैसे हमें कितना लिक्विड लेना। डिपेंड करता है कि आपकी जीवन शैली कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अकॉर्डिंग आप एज क्या है, बच्चों में भी इतना ज़रूरी नहीं होता है। बच्चों में जो स्टोन फॉर्मेशन है वो यूजुअली नहीं होता है। बच्चों में अगर हो रहा है तो उसको थर्ली हम लोग चेक करते हैं कि क्या कारण। जैसे मैंने बताया कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हेरिडिटरी होते हैं, तो बच्चों में स्टोन फॉर्मेशन हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर, जानना चाहूंगी कि क्या सारे ही किडनी स्टोन्स सर्जरी से ही क्योर होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी कि 80 to 90% किडनी स्टोन्स मेडिसिन से ही निकल जाते हैं बॉडी से और लोग ठीक हो जाते हैं। लोग आम तौर पे किडनी स्टोन्स को नेग्लेक्ट करते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब वो डॉक्टर के पास जाएंगे, यूरोलॉजिस्ट के पास आएंगे, तो हम उनको सीधे सर्जरी बता देंगे, तो ऐसा नहीं है। स्टोन का साइज, उसकी लोकेशन, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है कि आपका क्या ट्रीटमेंट है। कुछ लेवल तक आपका प्रोफेशन भी डिसाइड करता है, दैट इज़ अ एक्सेप्शन। जैसे अगर कोई पायलट है, कोई सोल्जर है, उनकी बॉडी में कोई छोटा भी स्टोन है तो कभी भी उनको परेशान कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको गवर्नमेंट या उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें छोटे स्टोन्स के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। अदरवाइज 5 मिलीमीटर या उससे छोटे जो स्टोन्स होते हैं 90% सिचुएशंस में खुद से निकल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लूइड इनटेक। आपने फ्लूइड इनटेक बढ़ाया, आपका यूरिन फॉर्मेशन बढ़ा और उससे आपका स्टोन पास आउट हो जाता है। इसके अलावा हम कुछ मेडिसिन देते हैं जो 2 हफ्ते का कोर्स होता है, वो मेडिसिन हम देते हैं, डाइटरी प्रिकॉशंस बताते हैं, तो उससे आपका स्टोन पास आउट हो जाता है और आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर स्टोन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उनका साइज़ बढ़ गया है जिसकी वजह से किडनीज में प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, बार बार आपको इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर, जानना चाहूँगी कि क्या सिम्टम्स, कोई भी अगर पेशेंट है किडनी स्टोन का, तो उसे कैसे पता चलता है कि उसे किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है? देखिए, जो सबसे कॉमन सिम्टम जिनके साथ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो होता है पेन, दर्द। और दर्द किस हिस्से में? पीठ के हिस्से में, क्योंकि किडनी जो होती है वो पीछे की तरफ होती है, कमर के पास होती है। तो स्टोन जो होता है, किडनी स्टोन का जो पेन है वो किडनीज की तरफ ही होता है, बैक की तरफ होता है। कभी कभार वो स्टोन जब किडनी से निकल के किडनी की ट्यूब में आ जाता है तो पेन पीछे की तरफ से होते हुए आगे की तरफ भी आ सकता है। तो ये सबसे कॉमन सिम्टम है जो लोग आके हमें बताते हैं, जिसके लिए हमसे मिलते हैं। दूसरा जो एक सिम्टम है वो है यूरिन में ब्लड आना। जब
किडनी में स्टोन्स बनते हैं तो उसके साथ उनसे कुछ घर्षण होता है किडनी के अंदर, किडनी के ट्यूब में, क्या कुछ इन्फेक्शंस डेवलप हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में यूरिन में ब्लड आ सकता है। इसके अलावा जो चीज़ होती है, यूरिन में इन्फेक्शंस के भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब लगना, ये भी किडनी स्टोन्स के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। हालांकि ये और भी सिचुएशंस में हो सकता है यूरोलॉजी से संबंधित कंडीशंस में, लेकिन ये किडनी स्टोन्स में भी हो सकता है। तो ये 2-3 सिम्टम्स बहुत कॉमन है, पेन और आपका यूरिन में ब्लड आना, यूरिन का में जलन होना। इसके अलावा जो एक चीज़ होती है वो होती है कि भाई लोगों को बार बार ये चीज़ें होने लगती हैं, तो ये समझ नहीं पाते हैं, यूरिन में जैसे इन्फेक्शंस बार बार हो तो उनको पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है। तो जब वो टेस्ट कराते हैं या हमसे मिलते हैं तब उनको पता चलता है कि उनको स्टोन्स हो गए हैं। तो ये कभी कभार लोगों को अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए तो फीवर वगैरह भी साथ में आने लगता है। हालांकि सिर्फ फीवर आना किडनी स्टोन की निशानी नहीं है। अगर यूरिन में कोई बर्निंग है, यूरिन में ब्लड है, पेन है और उसके साथ फीवर आ रहा है, जब पेन होता है तो कई बार लोगों को उल्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं, गैस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लगती है, सीवियर पेन होता है, तो ऐसी सिचुएशन में उनको उल्टियाँ भी आती हैं। तो ये कुछ आम सिम्टम्स हैं, आम लक्षण हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि हाँ आपको शायद किडनी स्टोन हो गया है। ये सिम्टम्स जब भी नज़र आए तो हमें तुरंत ही कंसर्न करना चाहिए डॉक्टर से। बिल्कुल, अगर क्योंकि किडनी स्टोन का जो पेन होता है अगर किसी को होता है वो ज़िंदगी भर नहीं बोलता है कि बहुत सीवियर पेन होता है। तो जब भी इस तरह का कोई पेन हो, साथ में वोमिटिंग हो, तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से जाके मिलिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर कोई आसपास यूरोलॉजिस्ट नहीं हो तो आप अपने फिजिशियन से भी मिल सकते हैं, जनरल सर्जन से भी मिल सकते हैं। वो इस कंडीशन को डायग्नोस करके आपको पर्टिकुलर डॉक्टर के पास रेफर कर देंगे जिससे आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। कुछ मिथ्स है डॉक्टर जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। ड्रिंकिंग लेस वाटर प्रिवेंट किडनी स्टोन फॉर्मेशन? इट इज़ अ मिथ, इट इज़ नॉट अ फैक्ट। ये सच्चाई नहीं है, बल्कि ज़्यादा पानी पीने से ही स्टोन से आप बच सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आपके शरीर में, आपकी किडनीज़ में कोई छोटे मोटे स्टोन्स हैं तो ज़्यादा पानी पीने से ही वो निकल जाते हैं। आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, अलग से दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कम पानी पीने से आपका कभी भला नहीं होने वाला, क्योंकि बॉडी में 70% तो पानी ही है, इवन उससे ज़्यादा भी कुछ हिस्सों में। तो पानी की कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पानी ज़्यादा पीने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। ओके, जानना चाहूँगी कि एक मिथ और है कि जब किडनी स्टोन्स पास होते हैं तो वो बहुत ही पेनफुल होते हैं, क्या ये सही है? कुछ हद तक सही है, हाँ। अगर किडनी स्टोन्स का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो जब भी वो निकल रहे होते हैं तो पेन होता है, डेफिनेटली होता है, और उससे लोग काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन अगर वो छोटे स्टोन्स हैं तो हम दवाई वगैरह उनको दे देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं, जिससे कि उनका पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है, उनको हेल्प मिल जाती है कि स्टोन आराम से निकल जाए। ज़रूरी नहीं है कि पेन हो तो किडनी स्टोन निकल ही जाए, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बिना पेन के भी किडनी स्टोन निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो दिस इज़ नॉट 100% करेक्ट थिंग, ये एकदम 100% करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। छोटे स्टोन जब निकलते हैं तो लोगों को पता भी नहीं चलता, बड़े स्टोन निकलेंगे तो दर्द होगा ही होगा, और ज़रूरी नहीं कि दर्द होगा तो निकल ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द किडनी स्टोन। एग्जैक्टली, अगर छोटा है तो आपको इतना ट्रबल नहीं करेगा। सारी ट्रबल तब शुरू होती है जब उसका साइज बढ़ जाता है। डॉक्टर, एक मिथ ये है कि किडनी स्टोन फॉर्मेशंस जो है वो ओल्डर एज्ड पीपल या एडल्ट्स में ही होते हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, पूरी तरीके से सही नहीं है। स्टोन फॉर्मेशन बच्चों में भी हो सकते हैं और इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं। ज़्यादातर ये पुरुषों में होते हैं क्योंकि वो फ्लूइड इनटेक थोड़ा उनका कम होता है, ड्राई हॉट एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, तो इस वजह से डिहाइड्रेशन की वजह से पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में उससे थोड़ा कम होता है। ओल्ड एज में स्टोन का कोई प्रेवलेंस बढ़ता नहीं है, मतलब उनके चांसेस बढ़ते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें मोस्टली आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती हैं, फूड हैबिट्स पे डिपेंड करती हैं। बच्चों में जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो हेरिडिटरी कंडीशंस में होती है, जैसे प्राइमरी ऑक्सिलेट यूरिया होती है, देयर आर सर्टेन अदर डिसऑर्डर्स, सिस्टिन्यूरिया, ऐसी सिचुएशंस जो फैमिली में ट्रांसमिट होती हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में बच्चों में स्टोन फॉर्मेशन होता है। सिर्फ स्टोन फॉर्मेशन नहीं होता, उनमें और भी परेशानियां होती हैं बच्चों में। तो
बच्चों में भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि बच्चों में मोस्टली स्टोन निकल जाते हैं, उनको सर्जरी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बच्चों में भी फॉर्मेशन होता है किडनी स्टोन का? बिल्कुल होता है, पुरुषों में भी होता है, महिलाओं में भी होता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है और बच्चों में भी हो सकता है। डॉक्टर, आपने फूड हैबिट्स की बात की, तो एक और मिथ है कि हमें सारा ही हर तरह का कैल्शियम इंटेक बंद कर देना चाहिए, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। कैल्शियम इंटेक बंद करते ही हमारा जो चांसेस हैं स्टोन फॉर्मेशन के, हो सकता है बढ़ जाएं, ये भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी के अंदर मोस्टली जो स्टोन फॉर्मेशन होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट नाम का एक कंपाउंड होता है जिससे स्टोन्स बनते हैं। तो अगर हम कैल्शियम बंद कर देंगे तो ऑक्सलेट का अब्जॉर्प्शन बढ़ सकता है, और ऑक्सलेट अगर कंप्लीटली बंद कर देंगे तो भी स्टोन फॉर्मेशन बढ़ सकता है। तो बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत है, कैल्शियम की भी ज़रूरत है, ऑक्सलेट की भी ज़रूरत है, इसलिए हर चीज़ को आपको कंज्यूम करना है, मॉडरेट अमाउंट में करना है। जिन लोगों को एक बार कैल्शियम ऑक्सलेट बनता है, स्टोन 60-70% पॉपुलेशन में जो स्टोन्स बनते हैं किडनी स्टोन्स, दे आर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। तो ऐसी सिचुएशन में हम उनको ऑक्सलेट लिमिटेशन बताते हैं, ऑक्सलेट स्टॉपेज नहीं बताते, हम उनको बंद करने के लिए नहीं बोलते, हम उनसे ऑक्सलेट का जो डाइट है उसको कम करने की सलाह देते हैं। यानी कि जो भी हमारा डाइट है, कैल्शियम हो, ऑक्सलेट हो, वो हमें बैलेंस रखना है, वो हमें ध्यान रखना है कि बैलेंस रहे। बिल्कुल, इट्स जस्ट नॉट इन फूड हैबिट्स बट इन लाइफ ऑल्सो, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन बैलेंस। सो खाने पीने में आपका बैलेंस रहेगा तो डेफिनेटली लाइफ भी आपकी बैलेंस रहेगी। डॉक्टर, आज आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या कैसा लाइफस्टाइल उनका होना चाहिए जिससे कि वो प्रिवेंट हो सके, वो बचा सके खुद को किडनी स्टोन फॉर्मेशन से? देखिए, जैसे मैंने बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी डाइटरी हैबिट्स और फ्लूइड इंटेक, तरल पदार्थ का जो सेवन है। तो सबसे पहले तो आप फ्लूइड इंटेक बढ़ाइए और देखिए कि आप कम से कम आपका 1.5 से 2 लीटर यूरिन बने। लोगों को ये भी समझ नहीं आता कि हमारा यूरिन कितना बन रहा है, तो भाई आप इतना पानी पीजिए कि आप कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए मोटे तौर पे। इतना अगर आपने फ्लूइड इंटेक ले लिया, सिर्फ पानी नहीं, उसमें जूसेस, कॉफ़ी, टी, milk, everything put together, all the fluid intake that should be around 3 liters. So अगर आपने इतना कर लिया तो मैक्सिमम चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, स्टोन से बचे रहेंगे। दूसरा, अगर आपको स्टोन बन ही गया है और पहले भी कभी बना है तो ऑक्सलेट को डाइट में कम करना है, पालक, टमाटर, बैगन, इन चीज़ों को कम करना है। कैफीन रिच डाइट भी स्टोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उसमें भी कैफीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो अब आप सोचो कि आप लिक्विड इंटेक के नाम पर अगर आप ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करने लगोगे, दैट कैन ऑल्सो लीड टू स्टोन फॉर्मेशन। सो ट्राई अवॉइडिंग दैट। और कॉफ़ी में भी कैफीन ज़्यादा होता है, चॉकलेट्स में भी कैफीन ज़्यादा होता है। खाने में ऑक्सलेट में नट्स में भी ज़्यादा होता है ऑक्सलेट, जैसे पीनट्स हैं, कैशू नट्स हैं, तो इन चीज़ों को भी थोड़ा मॉडरेट अमाउंट में लें, बहुत ज़्यादा ना लें। और इसके अलावा मोस्टली आपको सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि जैसे आप सॉल्ट इंटेक बढ़ाएंगे आपके यूरिन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, और यूरिन में जैसे कैल्शियम बढ़ेगा आपके स्टोन्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कैल्शियम खाने से यूरिन में स्टोन नहीं बढ़ता, दूसरी चीज़ों से बढ़ सकता है। जैसे अगर आपने ज़्यादा सॉल्ट ले लिया तो कैल्शियम यूरिन में बढ़ जाएगा, तो सॉल्ट ज़्यादा नहीं लेना है, ऑक्सलेट को कम करना है। प्रोटीन रिच डाइट लीजिए जितनी रिक्वायरमेंट है, वेरी हाई प्रोटीन डाइट्स नॉट एडवाइजेबल। तो ये कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस है, खान पान में परहेज़ है जो हम आम लोगों को बताते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आप अपना वज़न बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दें। ओबेसिटी, मोटापा जो है वो किसी भी तरीके से आपको हेल्प नहीं करेगा, आपके लिए नुकसानदायक ही है, और ऐसे लोगों में देखा गया है कि स्टोन फॉर्मेशन उनमें ज़्यादा हो जाता है। तो ओबेसिटी से बचना है। उस ओबेसिटी से बचने के साथ साथ ही अपनी लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ को ऐसा रखें कि थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा ज़्यादा नहीं कर पा रहे कुछ तो आप योगा कर लो, यू डू सम ब्रिस्क वॉकिंग एंड ऑल। सो आई थिंक एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, 30 से 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी 24 घंटे में आपको हर तरीके से हेल्प ही करेगी। अगर स्टोन से नहीं बचा पा रही तो आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगी जिससे आपको अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगने के साथ साथ आपके स्टोन्स भी बनना बंद हो जाएंगी। Thank you, Dr. Pandey, for sharing your insight today with us. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर,
on this podcast show, and it is really an honor, and it's a great opportunity to be here and to connect with so many people and tell them how they can prevent stone formation and how they can treat this disease. Thank you, listeners, for staying tuned with us on Urology Unplugged. Stay hydrated and take care of your kidneys. Until next time, thank you.